Hello, dear learners. Today we are going to discuss the metabolic processes for carbohydrates, and the very first metabolic process for the carbohydrate is nothing but glycolysis, which is also known by the name EM pathway or EMP pathway. So, not to waste the time, we will move towards the topic fast, that is what is glycolysis. So first we are going to talk about what is glycolysis, then we are going to talk about the significance of glycolysis, then we are going to talk about the actual glycolysis process, and then we are going to talk about the net energy production which has occurred in the glycolysis process. So to start with the glycolysis introduction, glycolysis is nothing but it is the word which is derived from Greek origin, whereas the glycose means sweet or sugar and lysis means to break down or to dissolve. So it is breakdown of sugar, which is a universal pathway in all the living cells, which is also known by the name Embden-Meyerhof pathway, EM pathway or EMP pathway. Why? Because E stands for Embden, M stands for Meyerhof, and P stands for Parnas. So it is Gustav Embden, Otto Meyer, and Jacob Carol Parnas. These are the inventors of glycolysis. So the name is Embden-Meyerhof-Parnas pathway, that is EMP pathway, or simply it can also be called as Embden-Meyerhof pathway, which is EM pathway. Whereas it is defined as the sequence of reaction, मतलब glycolysis क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन का सीक्वेंस है जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट को विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी जनरेट होता है विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट को होता है. इसमें दोनों भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, एरोबिक ऑल्सो एज वेल एज एनारोबिक ऑल्सो. एरोबिक कंडीशन मतलब जो कि एरोबिक कंडीशन में एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है, और अगर पायरुवेट फर्दर प्रोसेस होता है एनारोबिक कंडीशन में, सो उसका एंड प्रोडक्ट लैक्टेट होता है. So it is aerobic as well as anaerobic, wherein in aerobic process the end product is pyruvate, that means glycolysis will go only to pyruvate, and in anaerobic condition the pyruvate is further converted to lactate by lactate dehydrogenase. So this is nothing but aerobic as well as anaerobic process, wherein if you will talk about the significance, तो भी glycolysis क्या है. ग्लाइकोलिसिस ये तो तुम लोगों को पता चला है डेफिनेशन से कि ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उनके, जिसमें ग्लूकोज का क्या बनता है, पायरुवेट बनता है. तो अभी इसका ज़रूरत क्या है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. एनर्जी किसको लगता है, ऑलमोस्ट ईच लिविंग सेल नीड्स एनर्जी. ओके, सो इट इज़ मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस. ऐसे टिश्यूज़ में जो माइटोकॉन्ड्रिया लैक करते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है, ये प्रोसेस होता है साइटोसॉल में, दैट इज साइटोप्लाज्म में. सो ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया लैक करते हैं. एग्जाम्पल्स है आरबीसीज, कॉर्नियास एंड लेंस. ओके, एरिथ्रोसाइट्स, कॉर्निया, लेंस, ऐसे जो टिश्यूज़ हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उनमें एनर्जी प्रोडक्शन का काम ग्लाइकोलिसिस करता है, एटीपी सिंथेसिस. सेकेंड सिग्निफिकेंस ये है कि सोर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू विच कंटेन्स रिलेटिवली लेसर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब एक तो जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एक तो जिनमें उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम नंबर में है. फॉर एग्जांपल ल्यूकोसाइट्स, किडनी मेड्यूला, टेस्टिस एक्सेट्रा. यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस का काम ग्लाइकोलिसिस करता है.
Not only this, it is useful for our brain also, where the glucose dependency is there for the energy brain, for which works a lot. Then in emergency situation, it yields energy. It is an energy yielding pathway in absence of oxygen. So it is also useful for the synthesis of amino acids as well as fats. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये डायग्राम के साथ हम लोग सिग्निफिकेंस को एज एंड व्हेन वी विल कम टू ईच पीपीटी वी विल अंडरस्टैंड, विच इज़ अ रिवर्सल ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या? ग्लूकोज का फॉर्मेशन. और ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन. सो इट इज बोथ आर द एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेसेस, अपोजिट प्रोसेसेस. सो यहाँ पे सेल मेटाबॉलिज्म जो हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन में देखा था, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट को कन्वर्ट होता है और एटीपी प्रोडक्शन होता है, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है. सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस. नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट through glycolysis, and the reverse of this is gluconeogenesis. So this highlighted portion you can see here. Okay. Next is, it is occurring in the cytoplasm, glucose to pyruvate. It is not in mitochondria. Further, the pyruvate is being processed and it is converted to lactate. So the reactions involved in the glycolysis are, first it is energy investment phase or preparatory stage और प्राइमिंग स्टेज. मतलब एनर्जी इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा. अभी कैसे एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर सिग्निफिकेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, तो इसमें एनर्जी इन्वेस्ट कैसे करना पड़ेगा? यस, डेफिनेटली एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ काम करने के लिए एनर्जी नहीं कलेक्ट करते, तब जब तक हम लोग वो एनर्जी नहीं कलेक्ट कर सकते, जब तक हम लोग कुछ एनर्जी ले नहीं लेते. सो यहाँ पे क्या है? ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है. पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी तो कुछ मिलता है. So this is energy investment stage, wherein the energy is first invested through utilization of phosphate from the ATP. Then second stage जो होता है वो splitting stage होता है, जहाँ पे split up होता है. एंड थर्ड स्टेज होता है वो एनर्जी जनरेशन फेज होता है, मतलब जहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है, विच इज़ द आउटकम ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो अभी पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी इन्वेस्टमेंट. तो अभी ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स, ओवरऑल स्टेप्स अगर तुम लोग देखोगे तो इसके डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस इसमें हैं, जिसमें के ग्लूकोज थ्रू वेरियस इंटर कनेक्टेड रिएक्शंस इट इज कन्वर्टेड टू द एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट. तो ये ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर आइसोमराइजेशन होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज. मतलब ये स्टेज में एनर्जी पहले हम लोगों ने इन्वेस्ट किया. फिर नेक्स्ट है स्प्लिटिंग फेज, मतलब स्प्लिट अप. तो अभी यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो 6 कार्बन स्ट्रक्चर था वो अभी सिर्फ 3 कार्बन स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये इजीली यूज़ नहीं होता, इसको पहले कन्वर्ट होना होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 यूनिट्स बनते हैं फ्रॉम सिंगल यूनिट ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. So this 2 units are further carried out into the reaction, which is nothing but an energy generation phase. मतलब ये सारे जो reactions है यहाँ पे energy generation होता है.
तो पहला फेज क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है स्प्लिटिंग फेज एंड थर्ड वन इज एनर्जी gaining phase. Okay, so this way the glycolysis is being divided. So what is that, we will see one by one now, step by step. So first here if you will see, the first step which wherein we are investing the energy is phosphorylation of glucose. तो अभी फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ग्लूकोज का बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो जब ग्लूकोज का ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है तो ये कन्वर्जन में हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड एंड द एटीपी जो है, देखो यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट किया है, एटीपी डाला है, फिर एटीपी का एक फॉस्फोरस निकल के एडीपी बना, और वो फॉस्फोरस कहाँ आया, वो फॉस्फोरस स्ट्रक्चर में आया। जैसे कि ग्लूकोज प्लेन था, अभी ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन चुका है, मतलब